Good morning, students. Coming to the new sessions. Now we are having a very special topic, the topic known as Consumer Protection Act. This topic is generally established for the consumer protection against the business or the unfair trade practices that are going to happen in the business organizations. So, the Consumer Protection Act, what it does, it serves the protect of interest for the consumer. Before going through the slides or before going to the theoretical part, let me explain you with the help of the example. So, for an example, that you have purchased a bottle of a Bisleri. For the cost of the Bisleri bottle is rupees 24. Okay, but whenever you going to the hill station or any other places, the cost of the Bisleri bottle arises to rupees 30 or rupees 35. So, in that case, you can contact to the consumer protection site that the particular goods cost is being increased from places to places. In the case of the external UPs, I went to a marriage nearby the Bareilly and they have given me a bottle and the cost of the bottle has been increased just for the sake कि ये मैम ठंडी है because it is chilled and UP में electricity supply is very low, so we are using the generator to just chill the cold drinks bottle. So in that case, they have asked me the surplus amount. But what to do? They are in the extreme summer regions. You need to buy that particular product. But if you are not going to correct each and every person working in the society or the business or the commodity class of the societies who are doing just for the sake of money and they are getting the money from you just because of practicing the unfair practices, so you need to stop them. There must be a certain criteria where you can stop them. I will show you the site also, how the site works, and let me told you that I have also tried to complain on the site, but the documentation on the site is so lengthy. जो documentation part है sites पे बेटा वो बहुत lengthy है. So for us it becomes very difficult. It will take almost 1 to 2 hours. I ask my students also sometimes कि आप Consumer Protection Act में जाइए और एक complaint दर्ज करिए. Almost बच्चे 1 घंटे के लेक्चर में वो काम नहीं कर पाते. And the next day also we continue with the same page. And it needs such things. It needs n number of items to be get notified and to be get documented. So before practicing this, the platform is given by Government of India. Government initially is looking into this matter. There is no certain party in the between. So whenever you are complaining on the particular site, you doesn't have to go to any other places. You can move to the consumer protection courts also. But this is a prior thing. So in case if you are not able to do it by yourself or if you are having a lack of time, so in that cases you can ask the third parties also. यहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टीज होती हैं जो कि आपकी कंप्लेन को फिल करके आपको आईडी जनरेट करके दे देती है. And if you are getting a ID once, then you can easily move to the consumer forums. Okay. Now, whenever I am saying consumer forums, तो consumer forums बेटा differ कर जाते हैं with the cost of the product. For example, अगर product की cost 1-1.5 लाख रुपए ही, तो आप district forum तक ही applicable. लेकिन अगर एक cost 5 लाख या 10 लाख चली जाती है, तो आप state forum के लिए भी जा सकते हैं. और अगर ये कॉस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 25 करोड़ तक भी चली जाती है तो आप नेशनल फोरम तक भी जा सकते हैं. आप एक बहुत छोटे प्रोडक्ट के लिए नेशनल फोरम तक जाके बात नहीं कर सकते. सो एक मूवी आई बिजली गुल, वो मूवी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है कंज्यूमर फोरम का. वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जांपल है कि वैसे ही बेटा ये साइड भी काम करती है. तो कंज्यूमर फोरम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं काम करते हैं, सर्विसेज भी आती है. ठीक, अगर आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री की कंप्लेन करनी है, आपको रेलवे डिपार्टमेंट की कंप्लेन करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कंप्लेन करनी है, then too you need to go to the consumer protection act because ये साइट हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के प्रति ही नहीं सचेत करती है, ये साइट हमें और भी चीजों के प्रति सचेत करती है. So the definition is it serves the goods as well as the services. Unfair trade practices also, and there is a redressal agency. Redressal agency means you have a law for your favors.
ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे फेवर में कुछ ऐसे लॉज हैं जिनकी हेल्प से कंज्यूमर का भला किया जा सकता है। लॉज इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर। ओके, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर आल्सो। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है बेटा, हमेशा ये ध्यान रखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। दैट मींस द एंड कंज्यूमर, जिसने कंज्यूम करा, he or she can able to ask for the consumer for। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज मुझे देखने में बुरी लगती है, ठीक है। देयर इज अ वन गर्ल, आप एक केस स्टडी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसने कहा कि मिंत्रा का जो एम है वो अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियों के प्रति कोई गलत मैसेज दे रहा है। अब क्योंकि एन नंबर है, बहुत लोग हैं जो जुड़े हैं, जो मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, है ना, तो ये लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल पे अगर कोई चीज है उसके लिए आप एक बार इस तरह से बात कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया हो, आपके पास उसकी रिसिप्ट हो, आपने वो प्रॉपर एक्चुअली में बेयर की हो, तभी आप कंप्लेन करने के लिए एलिजिबल भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पिंक कलर की वाटर बॉटल बना दी है, मुझे देखने में अच्छी नहीं लगती, मुझे इस पे कंप्लेन करनी चाहिए, तो ऐसे तो बेटा बिजनेस हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जैसे आपने चॉकलेट खाई, चॉकलेट में कोई कीड़ा निकल आया, तो आप यहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। द कंज्यूमर इज अ पर्सन और अ ग्रुप हु इज इंटेंडेड टू ऑर्डर टू यूज और परचेज ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, social families, household and the similar things can be part of this. Clear? Now what do you mean by consumer dispute? डिस्प्यूट का मतलब हुआ बेटा लड़ाई झगड़ा। अब लड़ाई झगड़े का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं। दैट मींस आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हाट यू आर सेइंग एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम सेइंग। हमारे बीच में क्या है, डिस्प्यूट ऑफ थॉट्स भी हो सकता है। इट कुड बी द पॉसिबिलिटी वी हैड अ डिस्प्यूट ऑफ थॉट्स, कि हमको लग रहा है कि ये मेडिसिन जो है हमको साइड इफेक्ट दे रही है, जैसे अभी लोगों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए कहा है, लेकिन इनिशियली अगर ये नहीं होती तो पूरी पब्लिक क्या फोर्स कर रही थी कि इंडिया इज नॉट हैविंग अ मेडिसिन, इंडिया इज नॉट हैविंग अ मेडिसिन, एंड इट वाज नोन बिफोर आल्सो कि जब मेडिसिन आएगी तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, क्योंकि आप इतने बड़े एंटीवायरस का अगर डोज अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो हाउ कैन यू थिंक दैट कि इसमें कोई भी वायरस नहीं होगा। जब आप पोलियो का ड्रॉप पीते हैं तो आपको क्या लगता है पोलियो का एंटीवायरस दिया जाता है आपको? नहीं, बॉडी में कैपेसिटी होती है कि वो एंटीबॉडी बेटा खुद ही बनाती है। सो जितनी भी बार आपको कोई ड्रॉप दी जाती है, आपको फीवर इसीलिए आता है क्योंकि आपकी बॉडी में वो मॉलिक्यूल कुछ लिमिटेड मात्रा में डाल दिया जाता है और बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई एंटीडोज ले रहे हैं तो सबसे इनिशियली तो आप उसको खुद ले ही रहे हैं। तो जब आपने इस चीज पे एक्ट करा, कंज्यूमर फोरम में इस पे लार्ज स्केल कंप्लेंट्स चल रही है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे कंप्लेन चल रही है, लेकिन WHO ने तो शुरू से ही कहा, तब हम नहीं गए पढ़ने। अब क्योंकि इंडिया इस पार्ट से मूव ऑन कर चुका है, अब लोगों का ध्यान जा रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अपने से समझना है बेटा कि क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए हितकारी नहीं है। व्हाट इज फ्रूटफुल फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट फ्रूटफुल फॉर अस। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय और एनर्जी मत वेस्ट करिए सिर्फ इसलिए कि मैं कंप्लेन करना चाहता हूं एंड आई वांट टू गेट हाईलाइटेड। ओके, मैं आपको इसका एक एग्जांपल और कोट करती हूं। यस्टरडे इटसेल्फ आई हैव सीन अ न्यूज जहां पे एक पर्सन है, उसने कुछ इलीगल एक्टिविटीज करी जस्ट फॉर द सेक कि पुलिस मुझे टेररिस्ट समझ ले और मेरे घर मीडिया लेकर आ जाए। आई वांट टू गेट फेमस। So this is the statement the particular person has given in the newspapers and I have seen the news also last night. तो उसका वीडियो चल रहा था, उससे पर्सनल इंटरव्यू लिया जा रहा था। बट इन द केस अगर पुलिस टाइम से नहीं पकड़ती और वो सच्ची में कोई टेररिस्ट अटैक कर देता तब क्या होता? तो इसीलिए प्रोटेक्शंस किए जाते हैं, इसीलिए डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ द वर्स्ट पार्ट साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स
आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. दिस इज योर राइट, बट यू डू नॉट हैव टू मिसयूज. Consumer dispute means when a person against whom complaint has been made denies or dispute for the allegation that has been kept on them. कि मैं मना कर रहा हूँ कि मैंने ये चॉकलेट में कीड़ा नहीं डाला, या मेरी कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, या मेरा टेस्ट बहुत बेहतरीन है, या मेरा जो शहद है कंपनी का वो बेस्ट क्वालिटी हनी. ठीक, रूहाफजा इंडिया में ही रूहाफजा लिख सकता है बेटा, और उसमें फ्रूट्स की फोटो लगा सकता है, बट व्हेन यू गो टू दुबई यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर बॉटल. वो सिर्फ रिफ्रेशिंग ड्रिंक के नाम से उसे सेल करता है, उसमें फ्रूट्स की बॉटल नहीं लगाता है, क्योंकि वहां के कस्टमर, वहां की कंपनीज इतनी अवेयर हैं, वो इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिनाई करती है. अभी आप कुछ टाइम पहले देख सकते हैं, हार्डली a few months back Zara ने एक शो करा. They have done a runway for healthy peoples. Then क्यों करा होगा? क्योंकि इनके कपड़े हमेशा थिनर मॉडल्स थे, बहुत दुबली पतली से. ठीक, ये they want to raise the standard of the thought of the people कि हम इस सोसाइटी के लिए भी कपड़े बना सकते हैं, और हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को जो किसी भी तरह की बॉडी में. ठीक है, हम ब्यूटी फ्रेंडली नहीं है, हम ह्यूमन फ्रेंडली. Then at the end, every section of the society has looked that runway, और कुछ लोग वो कपड़े खरीदने स्टोर पे. So initially the manager has said कि मैम हमारे पास नहीं है, and if you give the request, then we will be sending. तो रिक्वेस्ट रेज कर दी. After few months जब फिर कपड़े नहीं आए, तो फिर वो कस्टमर गया दुकान पे, and they have said कि मैम अभी वो कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो गए, and I will again send the request, and if you are really interested, I will be getting it for you. अब बेटा कितने लोग होंगे जो दोबारा आए? मान लेते हैं आउट ऑफ 10 3 people दोबारा भी चले गए, तो रेशियो इज गेटिंग डिक्रीज. देन अब कितने लोग हैं जो थर्ड टाइम पे जाएंगे? मान लीजिए 0.001%, जो रियली उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये जो आया है मार्केट में, आई नीड एंड आई वांट टू वेयर. ठीक है, मैंने आज तक इतने अच्छे ब्रांड्स नहीं पहने हैं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए. देन उन्होंने फिर अप्रोच करी. फाइनली उसे समझ में आया कि ये पीस अवेलेबल ही नहीं. उसने किसी दूसरे स्टोर पे ट्राई करा, तीसरे स्टोर पे ट्राई करा, चौथे स्टोर पे ट्राई करा, कहीं नहीं. जहां जहां उनके शोरूम्स थे कहीं नहीं. नाउ ही केम टू नो दैट उन्होंने सिर्फ रनवे रखा था. दे आर एक्चुअली नॉट सेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स. वो क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि जब मोटा आदमी उसको पहनेगा तो वो उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना एक स्लिम ट्रिम लग रहा. जितना एक फिजिकली फिट इंसान उस ड्रेस को पहन के हैंडसम या ब्यूटीफुल लग सकता है, उतना एक हेवी बल्की बॉडी वाला पर्सन नहीं लगेगा. और they doesn't want to decrease the standard of the beauty. They always appreciate that beautiful people keep on wearing our clothes, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ये बहुत सुंदर है ना. वो एक्चुअली आप बहुत सुंदर हो. ज़ारा के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता. If you are physically fit, you are mentally strong and you are beautiful from inside, आप Adidas पहन लीजिए, आप रिलायंस के जियो के कपड़े पहन लीजिए. People will keep appreciating you क्योंकि आप अंदर से खुश हैं. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चीज को बहुत ध्यान रखता है. ये केस मैंने आपको क्यों अभी बताया कि आप इस चीज को अच्छे से समझिए बेटा, कि कंज्यूमर के हित में बहुत चीजें होनी चाहिए ना. हाउ वर्ल्ड केम टू नो दिस स्ट्रेटजी अबाउट Zara अगेन विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो समवन फ्रॉम द सोसाइटी हैज कंप्लेन्ड कि इन्होंने हमें अप्रिशिएट नहीं करा है, एक्चुअली दे हैव डीअप्रिशिएटेड अस. उसने मानहानि का दावा दर्ज कर दिया एंड दे हैव सेड कि ये गलत है, कि हमको पहले कोई चीज दिखाई गई, हमको उसके प्रति ग्रीडीनेस हुई, और जब हम उसको बार बार मांग रहे हैं तो फाइनली दे आर सेइंग, और दे आर नॉट डायरेक्टली सेइंग बट दे आर इनडायरेक्टली सेइंग कि ये हमको पहनना ही नहीं चाहिए, ये फिजिकली फिट हमारे लिए नहीं है. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1.
Now example number 2. Let me discuss you the case of Sunsilk. So this lady is not in India. This lady is working outside the India. But India में Sunsilk बहुत चलता है और बाहर भी बहुत चलता है. The basic Sunsilk that is black and pink and white. ये इनके इनिशियल मॉडल्स थे बेटा. तो आप अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. इनिशियली दे आर विद ओनली 3 वेरिएंट्स, ब्लैक, पिंक एंड व्हाइट. So they started their business और उस लड़की की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी and she thought कि ये नया प्रोडक्ट आया है and वो कह रहा है कि मेरे बाल काले लंबे और घने हो जाएंगे, let me try this. और they are saying कि 99.99% it will work, है ना. So सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ. I am going to get married within few months and suddenly she has realized कि इसको ये शैम्पू सूट ही नहीं कर, उसको सूट ही नहीं करा, उल्टा उसका हेयर फॉल हो गया. एंड शी वाज वेरी कीन, शी इज वेरी एजुकेटेड. उसने मानहानि का दावा करा सनसिल्क एंड फाइनली सनसिल्क लॉस्ट द केस. वो लड़की जीती बिकॉज उसके पास मेडिकल प्रूफ्स थे और सनसिल्क के वो एड्स थे जो टीवी पे चल रहे हैं. सो उसके बाद से बेटा आप नोटिस करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, इवन डिटॉल आल्सो doesn't says कि हम 100% कीटाणु मार देंगे, या लाइफबॉय itself doesn't says कि ये 100% आप यूज कर सकते हैं. अब ये 100% वर्ड हट गया. 99.99% they are saying. इवन सेंसोडाइन भी अब नहीं कहता, क्योंकि 100% मींस कि आप इमोशंस के साथ खेल रहे हैं लोगों के. और हो सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि आपके प्रोडक्ट को गलत ना करें, पर उस इंसान के इमोशंस हर्ट हुए हैं तो इसलिए वो मानहानि का दावा कर सकता है. ये कहां से हेल्प मिलेगी उसे? ये हेल्प मिलेगी उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से. सो आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स, वन दैट इज हिटिंग मेंटली एंड द वन दैट इज हिटिंग पर्सनली. तो दोनों ही एग्जांपल एक ही एक्ट में चले जाएंगे, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. मूविंग फर्दर, द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक 100% सुरक्षा. इट्स नथिंग लाइक 100% सुरक्षा. आप बिलीव करिए, आप रोज आधी बोतल डालिए एक बकेट में और आप उससे नहाना शुरू करिए, जब आपको वायरल होना होगा हो जाएगा. We are using Lifebuoy in our country. In India, we are using the Lifebuoy. Why? I don't know why people are still using Lifebuoy. सबको पता है कि वो एनिमल्स को नहलाने के लिए. Why people are using Colgate? I am not saying कि कोई Colgate की मैं एंटी पर्सन हूँ, मेरे घर में भी कुछ लोग यूज करते हैं, but I am just giving you a proper information कि हम क्यों उसको इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं जबकि उसका एक फीडबैक निगेटिव आ चुका है ना. पॉइंट नंबर 3, हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स खाते हैं जैसे ब्रूफेन है, इट शुड बी बैन्ड. अभी भी कुछ लोगों को मिल जाती है, कैसे? तो देयर आर मेनी थिंग्स. और ये स्टडी आप घर में भी कर सकते हैं. एवरीबडी हैज टोल्ड यू कोक एंड द पेप्सी क्लीनर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं. सो व्हाई यू आर कंज्यूमिंग कोक एंड पेप्सी? ऑन द अदर साइड, किसी के मन में अगर फ्रूटी या माजा का एग्जांपल आ रहा है तो वो भी बीवेयर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स जो कंटेनमेंट्स होते हैं वो माजा में और फ्रूटी में होते हैं बेटा. क्योंकि एक फ्रूटफुल टेस्ट मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा केमिकल्स का यूज होता है, सबसे ज्यादा. एंड पीपल आर स्टिल बाइंग, पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड. इंडिया में मैगी कब बैन हुई है? मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत टाइम से नूडल्स नहीं खाए? बहुत टाइम मींस हार्डली फ्रॉम 3 months बिफोर उसने नूडल्स नहीं खाए. इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, चाउमीन सब अवेलेबल है और केस हो चुका है. अवेलेबिलिटी इज वेयर ना. तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है. आप लोग ये मत सोचिए कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है. यू आर द पार्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ओके, सो फॉल्स इन द मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड्स. जब हम झूठा बोलते हैं कि मेरे गुड्स तो बहुत अच्छे हैं और इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये फॉल्स मिसलीडिंग बातें. सेकेंड, बार्गेन प्राइस. बार्गेन प्राइस का मतलब है आप किसी दाम में खरीद सकते हैं, मैं किसी दाम में खरीद सकता हूँ. देखिए, आप एक पीस ऑफ ब्रेड ले लीजिए,
ओके, सो इफ यू मूव टू द हिल स्टेशन, आप अगर उस ब्रेड को देखेंगे तो उस पर लिखा होता है बेटा कि प्लेन्स के लिए इतना और पहाड़ी जिलों के लिए दाम इतना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्रेड आपको 20 रुपए की मिल रही है तो आप पहाड़ पे जाएंगे तो वो आपको शायद 23 रुपए की मिलेगी, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीजेस, सो दैट इज एडजस्टेबल। लेकिन अगर 23 की बजाय आपको 25 की बेचे, ये गलत है। सो दिस इज रॉन्ग ना, कि आप कहें कि अब हम पहाड़ पे अपने प्रति भी कुछ पैसा खर्च करते हैं तो हम आपको 23 की नहीं 25 की देंगे, तो ये गलत है जी। तो थिंग्स शुड बी वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, सेट ऑन द एमआरपी प्राइसेस, देन ऑफरिंग द हाईएस्ट प्राइसेस एंड द कॉन्टेस्ट। देखिए ये भी गलत है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ये तभी की जाती है जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट में चल नहीं रहा होता है, और बहुत सारी कंपनीज तो सिर्फ इसलिए भी करती हैं कि उनके प्रोडक्ट की या तो एक्सपायरी आ गई है या वो सैंपल नहीं ले पाए हैं, तो वो आपको देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा माई ग्लैम इज क्रिएटिंग अ सर्वे दैट यू कैन टेक 2 लिपस्टिक्स इन ₹199। आप इस सर्वे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, आप सर्वे करते हैं और आपके पास वो चीज आ जाती है, क्यों? जबकि इनिशियल प्राइस उसका 400-500 रुपए। उसके दो ही रीजन है, या तो बेटा अब उसका जो टाइम है, टेन्योर है, वो खत्म हो चुका है, इट इज नॉट सेफ टू अप्लाई ऑन द लिप्स। पॉइंट नंबर 2, ये भी हो सकता है कि उसकी अभी टेस्टिंग हुई ना, अब कंज्यूमर खुद ही अपने आप को अलाउ कर रहा है कि मुझ पर टेस्ट करो। अगर मार्केट ने कोई चीज बाय वन गेट वन पे निकाल दी, कंज्यूमर खुद ही अलाउ कर रहा है कि मैं टेस्ट करके बता रहा हूं दैट आई एम सेटिस्फाइड और नॉट। यू आर हैविंग योर ओन स्टैंडर्ड्स, यू आर हैविंग योर ओन बॉडी, योर ओन हेल्थ। आप क्यों इस तरह की चीजें परचेज करते हैं, और क्यों एक कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली सर्वे का ऑप्शन बन जाता है? विलिंगली नहीं कर रहे हैं आप लोग, आपको पता ही नहीं है कि आप इसका पार्ट, अभी जान ही नहीं पा रहे हैं कि आप इसका पार्ट। बहुत सारी चीजों पे एक्सपायरी लिखी ही नहीं होती है, जैसे च्यवनप्राश। आज जाइएगा, सर्च करिएगा, मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी और हार्डली ये लिखा होगा कि बेस्ट बिफोर दिस दिस दिस। ये नहीं मेंशन है कि खुल जाए तो, बंद है तो, एंड द कंपनी पीपल सेज कि मैम खुलने के बाद 3 साल की होती है। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, पढ़िए उसे अच्छे से। सो आपको भी अवेयर होना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर हो जाइए। Amazon पे बहुत सारी चीजों में बेटा लेसर रेट्स पे ऑफर आते हैं, और उसमें एक ऐप की आईडी बनी होती है, प्लीज वो आईडी क्लिक करिए, पढ़िए उसे। हो सकता है वो आपको थर्ड पार्टी पेज पे ले जाए, सेम पैकेजिंग है, सब कुछ सेम है, पर आप थर्ड पार्टी पेज पे चले जाए। सो फिर आपको रियलाइज होगा कि आई एम नॉट बाइंग अ एक्चुअल प्रोडक्ट, मुझे तो गलत प्रोडक्ट मिल गया। डन। सो आपको भी अवेयर होना है, एज एन स्टूडेंट यू शुड गेट अवेयर, और आप आगे सोसाइटी को भी अवेयर कर सकते हैं। होर्डिंग एंड द डिस्ट्रक्टिव ऑफ द गुड्स, कि खराब सामान मिल गया आपको, फॉल्सली रिप्रेजेंटेड, रीबिल्ड, सेकेंड हैंड, इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया है कि आपको लगे कि हमें बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, ये सारे तरीके गलत। क्लियर? अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं बादाम का, नट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, बादाम का एग्जांपल लेते हैं। बादाम जितने भी बेटा आप पैक्स आलमंड्स कंज्यूम कर रहे हैं, मोस्टली आलमंड्स का जो ऑयल है वो उससे निकाल देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे करते हैं? आपने घर में वॉशिंग मशीन देखी है, उसमें ड्रेनर होता है, सो देयर इज अ ड्रेनर जहां पे स्पिन करते हैं आप, क्लोज तो बहुत जल्दी 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 घूमते हैं ना, ऐसे ही आलमंड्स का भी होता है, बादाम का भी ड्रेनर होता है, वो बहुत जल्दी 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 घूमते हैं और उनमें से जितना ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो यूजफुल नहीं है, बस आप उन्हें खा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेस्ट। उनमें ना एक स्वीटनेस का फैक्टर मिसिंग होता है, आप खुद से जज कर सकते हैं। एक रैशनेस होती है, सूखापन होता है, और जो ऑयल कंटेंट वाले होते हैं उनमें एक स्वीटनेस होती है, उसमें एक हल्की सी मिठास आपको मिलेगी। तो अगर आप कभी गोवा साइड जाएं तो वहां इजीली आपको तीनों वेरिएशंस मिल जाएंगे।
डन। तो आपको खुद भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। गवर्नमेंट आपकी सिर्फ मदद कर सकती है, आपको पढ़ा सकती है, जैसे मुझे कहा है कि आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन अब आगे लाइफ लॉन्ग आपको खुद ही अवेयर रहना है। क्लियर? देन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ चीजों को, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग कि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे RDX, अगर फुल फॉर्म पढ़े तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, रिसर्च के काम आता, कुछ बढ़िया नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। और वैसे RDX का ना जब आप नाम सुनते हैं ताकि माइंड में क्लियर है कि ये तो कुछ गलत है। तो कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें नॉलेज कम है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हमने चीजों को एनालाइज नहीं करा है बहुत अच्छे से। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। ओके, restrict the trade and practices. Mostly what we have seen this affects the delivery of the goods and the supplies of the goods and the services. वैसे नहीं हो रहा है जैसा सरकार चाहती है। सरकार चाहती है कि सबको सब कुछ अच्छे से मिले, एक जस्टिफाइड वे में मिले, पर यहाँ पे कुछ हम चूक रहे हैं, ठीक। तो वैसा नहीं हो रहा है जैसा सरकार चाहती है, तो इसीलिए वो इम्पोज करती है। क्या इम्पोज करती है बेटा? रूल्स, रेगुलेशंस, समटाइम अमाउंट ऑल्सो, कभी कभी कोटा लगा देती है, कभी कभी पनिशमेंट लगा देती है, या किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आपसे टैक्सेस लेने लगती है। लेकिन एनी हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रमोट करती है कि आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए अप्रोच करें। राइट्स टू कंज्यूमर, यस, ये हमें जो बिल देती है जिसपे GST मेंशन होता है, अमाउंट मेंशन होता है, ये हमारा पहला राइट है। सो व्हेनेवर यू आर बाइंग समथिंग, आप बिल जरूर लें, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेंगे, सो दिस इज योर प्राइमरी नीड। बिल के बिना ये प्रूफ नहीं होता है दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन परचेज्ड फॉर योर पर्सनल यूज, आइदर यू आर द कंज्यूमर और यू आर नॉट द कंज्यूमर। एंड ये बात हमने इनिशियली भी कवर करा है that this is Consumer Protection Act, not the Customer Protection Act. So at the end you should be consumer. Clear? So bill is a basic and the informational right for the consumer. ये हमारी सेफ्टी को, हमारी चॉइसेस को, हमारी सारी चीजों को सेफगार्ड करता है। अब there are the redressal agencies, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, नेशनल कमीशंस सबसे लार्जर स्केल में काम करती है अक्रॉस द कंट्री कि वो लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि बेटा बहुत छोटी चीज के लिए कोई व्यक्ति बहुत जल्दी कंप्लेन भी नहीं करता। देखिए, आप एक बहुत नॉर्मल सी बात ले लीजिए, आप घर एक टीवी है, अब आपका टीवी सही से काम नहीं कर रहा, डन, आप क्या करेंगे? आप तुरंत कंप्लेन करेंगे या आप उसको कार में रखेंगे, लेकर जाएंगे, एनी हाउ आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने कार निकाली है, 10 दिन हुए शोरूम से लेके, अब आप क्या करेंगे? अगेन कोई प्रॉब्लम है तो आप दौड़ के जाएंगे, क्लियर। लेकिन आपने एक ब्रिटानिया के केक का पैकेट लिया, आप उसका टेस्ट कुछ 19-20 है, ठीक। आप फॉर एग्जांपल सिटी मार्केट से लाए, आप 2-3 किलोमीटर घर भी आ चुके हैं, नाउ यू विल अगेन रन टू दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड यू वांट टू रिप्लेस इट, व्हाट विल यू से? मैम 25 रुपए का है, इतना तो तेल में खर्च हो जाता है। यही कहते हैं हम टाइम का एनालाइज करते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मुरादाबाद मार्केट, जहाँ 15-20 मिनट्स लग जाएंगे। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली और एनी अदर हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन एरिया, तो कौन मिलता है, 1-1 घंटा लग जाएगा अगर ट्रैफिक है। So you will really going there and complaining the particular facts? No. तो इसीलिए नेशनल सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा केसेस को सॉल्व करती है, क्योंकि जनरली हम कंप्लेंट्स उन्हीं चीजों की करते हैं जिनका कॉस्ट बहुत हाई होता है या फिर उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्जर स्केल पे, कि मुझे बहुत नुकसान हो गया या सोसाइटल इम्पैक्ट है, सबके साथ बुरा हो रहा है, तब कंप्लेन करने का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। Then, so consumer forums are like the interest of the consumer are
sought to be promoted and protected under the act. Done. Then Consumer Protection Act, that is जो state करता है, that is chapter 2. और sections कौन कौन से हैं? 4 to 8. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, अगर आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं. देन सेंट्रल कंज्यूमर की पॉलिसी प्रैक्टिस का क्या है? 167. ओके, इसको सेंट्रल भी कहते हैं या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कह सकते हैं. ओके, यहाँ पे चेयरमैन जो है उनका भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है और इसी के तहत कितने लोग सेंटर में बैठेंगे वो भी मिल जाता है. एंड ऑलमोस्ट एक काउंसिल में बेटा हर साल एक काउंसिल में 150 मेंबर होते हैं, 150. देन वो अप्रूवल से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय होते हैं. इट कुड चेंज आल्सो, लेकिन आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं गवर्नमेंट नौकरी की तरह. देन यहाँ मेंशन भी है. ठीक है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट साल में एक बार तो मीटिंग होनी ही चाहिए, एटलीस्ट. देन अब स्टेट कमीशन में क्या होता है बेटा कि ये गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं लेकिन आप स्टेट के सेंटर में. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, तो मेरे लिए सेंटर कहाँ है? लखनऊ. ओके, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैम हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो आपके सेंटर कहाँ होगा? जयपुर. क्लियर? सो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. देन अब वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या जो स्टेट के मेंबर्स हैं वही सेंटर के मेंबर्स हैं या फिर डिफरेंट सेट ऑफ मेंबर्स काम करें? ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे है बेटा? स्टेट लेवल. ठीक, फिर हम आ गए डिस्ट्रिक्ट में. देन डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरपर्सन अलग होंगे, कुछ मेंबर्स हम स्टेट से भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास स्कोप नहीं होता है बहुत ज्यादा. तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि हमको बहुत लोग ना मिल पाए. जैसे आई एम राइट नाउ इन मुरादाबाद. ओके, तो मेरे लिए मेरा सेंटर क्या है? मैं डिस्ट्रिक्ट में ही हूं ना, मुरादाबाद इज माय सेंटर. देन आपको जरा सा भी डाउट हो कि आपका क्या शहर है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या स्टेट है, लुक एट योर आधार कार्ड, सब लिखा है. ठीक, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर तो आपका अलग हो जाएगा. इफ यू आर फ्रॉम रामपुर अलग हो जाएगा, बरेली है तो अलग हो जाएगा. So it varies from district to district. District members can take the help from the states, क्योंकि बहुत ही कम लोग रह जाते हैं, तो इनकी मीटिंग्स में या इनके अप्रूवल में आप कोई चेयरपर्सन स्टेट से भी ले सकते हैं. Then redressal mechanism. So under the quasi judiciary redressal mechanism has a 3 levels. अभी हमने डिस्कस करा है कौन से 3 लेवल्स हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल. क्लियर? अब ये अमाउंट बता रहे हैं. ठीक, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कोई ऐसा सर्टेन अमाउंट नहीं है, लेकिन 20 लाख से कम होना चाहिए, ये हमको पता. इट शुड बी लेसर देन 20 lakhs. स्टेट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 20 to 1 crore. ये फिगर याद कर लीजिए. स्टेट जो मैंने हाईलाइट कर, अगर आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, मैं अलग से रेड से हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट कि आपको ये अच्छे से फिगर याद हो जाए. क्योंकि उससे जो लेसर है वो डिस्ट्रिक्ट में चला गया और उससे जो हायर है बेटा वो नेशनल में आ गया. तो सेंटर वाली फिगर याद कर लीजिए. ये सबसे इजीएस्ट वे है ये याद करने का कि हमने अगर कंप्लेन करनी है तो हम किस तरह से करें. क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि वहां कैसे प्रोविजन बनाया जाता है. ये बेटा प्रोविजन बनाने का तरीका है कि एक प्रेसिडेंट होंगे, मैं अंडरलाइन करते चलती हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. हाँ, वुमेन्स, ये एक ऐसी जगह है जहां पे वुमेन्स का होना भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मैंने एक बार आप लोगों को पढ़ाया भी है. देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि वुमेन शुड बी रिक्रूटेड. क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ एम्पैथी वुमेन्स ज्यादा अच्छे से कर पाती. आपने कभी आप सर्जरी रूम में गए हो, कोई बच्चा या किसी की कभी सर्जरी हुई हो या आपके पेरेंट्स में से किसी की हुई हो, आप बात करिएगा
हमेशा जो बंदा एनेस्थीसिया देता है वो डिफर होता है। अगर मेल सर्जरी कर रहा है तो एक फीमेल डॉक्टर साथ में होगी, और अगर फीमेल डॉक्टर सर्जरी कर रही है तो एक मेल डॉक्टर साथ में होगी। ये हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी, पेशेंट्स। अच्छा, आप कभी अपने सगे रिलेटिव्स की सर्जरी नहीं कर सकते, ये भी एक लॉ। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैं सर्जन हूं तो मैं अपनी मदर की सर्जरी कर दूंगी, बिकॉज एम्पैथी स्टार्ट वर्किंग। मैं सही डिसीजन लूं, मैं गलत डिसीजन लूं, उसमें मेरा प्यार ज्यादा है, मुझे तकलीफ होगी उनकी सर्जरी करने में। और अगर मैं आपको नहीं जानती हूं तो मैं आपको एज एन पेशेंट डील करूंगी। मेरे लिए आप एक बॉडी है, मैं बस आपको ट्रीट करूंगी और आपको घर भेज दूंगी। तो इसीलिए बेटा n नंबर ऑफ स्टेट्स एंड n नंबर ऑफ फोरम्स जहां पे लड़कियों के लिए पोस्ट रिजर्व रहती है। सो जितनी भी बच्चियां आज ये लेक्चर ले रही हैं, just search these things and you can apply for the government official sites also. Clear? अब वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम एज होनी चाहिए 35। ठीक है, यहां पहले मैं वुमेन पे क्लिक कर देती हूँ, ये पार्ट आपका क्लियर हो जाए। मिनिमम एज मेंबर्स की कितनी होनी चाहिए बेटा? 35। ये वाला पार्ट मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। डन। एटलीस्ट बच्चे के पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो ये सारी चीजों को अच्छे से देख रहा हो और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो उसने गवर्नमेंट के ही किसी डिपार्टमेंट में। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 25 साल की उम्र में किसी सरकारी संस्था में लग गए, तभी 35 में, मिनिमम 35 में आप इसमें जाके काम कर सकते। डन। अब बाकी चीजें कोई ज्यादा डिफर नहीं है कि हमेशा इनको अगर ये यहां से ये फेल हो गए तो ये कहां जाएंगे? स्टेट में। स्टेट से भी फेल होगा तो कहां जाएंगे? नेशनल में, अगर इनका वो अमाउंट है तो। और अगर अमाउंट नहीं है तो फिर ये अपने ही फोरम में रीअप्लाई कर सकते। ठीक है, देखिए ये वो वाला हाल नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट और ये और वहां ऐसा नहीं होता। वहां पैसे से किसी भी चीज की वो नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक गरीब व्यक्ति था, लेबर था, उसे कोई गाड़ी आके हिट करके चली गई। डन। अब उसका पब्लिक फोरम पे कोई वकील है, वो केस लड़ रहा है, अब वो हार गया, डिस्ट्रिक्ट से हार गया, हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, यहां अमाउंट पे तय किया जाए कि आप जा सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। कह रहे हैं कब तक काम कर सकते हैं? 5 साल तक तो आप करेंगे ही, या फिर आपकी एज 65 हो जाए तब। क्लियर? डन। आप वॉलेंटरी रिजाइन भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक, लेकिन इनसाइडर प्रैक्टिसेस नहीं, ये ध्यान रखिए। इनसाइडर प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कंपनी पे कोई कंप्लेन आ रही है और आपने मीडिया को वो न्यूज भेजी, आप ये नहीं करेंगे। इनसाइडर अगर न्यूज शेयरिंग है तो दिस इज एन इलीगल। ठीक है, अब इन्होंने एक केस दिया हुआ है जहां पे मशीनरी के पार्ट्स को सप्लाई किया जा रहा था, और जब मालिक को पता चला तो उसने फिर क्या करा? रीड्रेसल कमीशन को जाके पहुंच करी। रीड्रेसल ने उसकी हेल्प करी, और क्योंकि मशीनरी का बेटा पार्ट है इसलिए ये वाला केस जो यहां पे डिस्कस किया गया है उसमें वो केस डिस्ट्रिक्ट फोरम का है। ये केस किसका है बेटा? डिस्ट्रिक्ट फोरम का है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको अलग से भी जाके पढ़ सकते। क्लियर? डन। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या ऐसा होगा कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाए। पर्सन कैसे डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? देखिए, डिस्क्वालिफाइड मतलब होने का ये नहीं है कि आप रिजाइन दें। अगर आपकी एज 65 में अबव है तो फिर आपका रिजाइन नहीं है, फिर तो वो आप ठीक है, आपकी सर्विसेज खत्म है। या 5 साल बाद आप रिन्यू नहीं
हुए तो सर्विसेज खत्म है। यहाँ ये क्या कह रहा है कि आप लायक ही नहीं, आप डिस्क्वालिफाइड। सो डिस्क्वालिफाइड कब होंगे? या तो आप 35 से कम हो, या आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री ना हो, या आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस ना हो, या आपकी एज 65 से ज्यादा हो, तब आप क्राइटेरिया में ही फिट नहीं बैठे। So then you are disqualified by this particular post. Clear? अब इन्होंने एक एक करके बताया है, मैंने आपको ऑलमोस्ट एक साथ ही सारा बता दिया है, ठीक है? Now coming towards the next topic, that is law relating to intellectual property rights. अच्छा, ये बहुत चला हुआ है आजकल। क्या होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल? किसे बनाते हैं हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल? पैसे की तरह काम करती है, वेल्थ होती है। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जस्ट लाइक अ वेल्थ, क्योंकि हम बेटा ग्लोबली काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मेरी इमेज, मेरी लॉयल्टी, मेरे ब्रांड का लोगो, मेरे एम्प्लॉइज, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे न्यूज सब किसमें आ जाते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाते हैं। और अगर इसको भी कोई गलत करता है, इसके साथ भी कोई अनहित होता है, तो क्या होता है? आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सो इस केस में ये देखा जाता है कि हम क्योंकि इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, इसलिए ये राइट ओपन हुआ है, तो इसकी ये तो बेटा इंपॉर्टेंस होगी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम दो कंट्री में हैं, या हम दो से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, या दो एंटिटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको दो तरीके के राइट्स देती है। इनको ट्रिम्स एंड ट्रिप्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Intellectual property rights for the Indian standards and information provision of the methods. Dispute resolutions with respect to intellectual property protections are now TRIPS complaint. किन किन चीजों की आप कंप्लेन इसमें दर्ज करा सकते हैं? देखिए, यही मैंने अभी आपको बताया। ये रही वो चीज, जैसे कि आपकी कंपनी का एक लोगो है, नाइकी का एक लोगो, आप वो लोगो कोई और यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, तो नाइकी को वो लोगो पेटेंट है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। ब्रिटानिया का एक लोगो है, वो पेटेंट है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। नेस्ले है, नेस्ले में जो पर्पल कलर यूज होता है बेटा, आपके पास एक पर्पल हार्ट वाली इमोजी आई, पर्पल हार्ट वाली, व्हाट्सएप पे और सब पे चल गई। किसने शुरू करी थी? कैडबरी ने शुरू करी, सेंडिंग पर्पल हार्ट्स। उसने सोचा कि हमारा कवर तो पर्पल है और ऐसा कोई कलर भी नहीं है जो इमोजीज में यूज हो रहा है, तो पर्पल हार्ट सेंड करिए आप किसी यूज करना चाहते हैं तो। देखिए, ये उसने उसको राइट दे दिया। अब अगर कोई कंपनी उस तरह के हार्ट का यूज करती है या उस कलर के हार्ट का यूज करती है, तो कंपनी उसको कह सकती है कि दिस इज माय पेटेंट, ये मेरा पेटेंट, या तो आप मुझे पे करिए या फिर आप इसको यूज करना बंद करिए। तो हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, हम लार्जर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरे पेटेंट्स को, मेरे राइट्स को, मेरी गुडविल को, मेरी प्रोसेसिंग को, मेरी पैकेजिंग को, मेरे कलर कॉम्बिनेशन को, मेरी डिजाइन को प्रोटेक्ट करता है। मैं जो भी कर रहा हूं इसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? और भी ऐसे प्लांट वैरायटीज भी है, साइबर क्राइम्स भी है, डेटा प्रोटेक्शन भी, ठीक? तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये एक्ट्स है जो अलग अलग बनाए गए हैं चीजों को प्रोटेक्ट करने। ट्रेड एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट। ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जाएंगे और फिर इसमें से कोई एक एक्ट चुनेंगे। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए आपको स्पेशल एक्ट्स बनाकर दिए हैं, और मैं यही पे आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्लेन फिल कर सकते हैं, तो आपके ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे।
हम सीधे गवर्नमेंट की साइड पे चले जाएंगे। ये आ गई बेटा, सबसे पहले ही आ गई ऊपर। ये ऑल्दो जो साइट है जो मैं खोलने जा रही हूं अभी, ठीक है, तो आप इससे खोल लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप सीधे इसी से खोल सकते। तो साइड इतनी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, जो ओपन हो गई हम उस पर आ जाते हैं। अब आ गए उपभोक्ता मामले विभाग। ठीक, अब आपके पास ये साइट है, आज दिखने लगी आपको। अब ये साइट है, ये आपको हेल्प करेगी। ये नीचे आ गया, क्लियर। अब इस तरह से आप अपनी चीजों को स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप ही अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ बेटा, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी आईडी का कोई नंबर आ गया है, कंप्लेन हैज गॉट द आईडी नंबर आल्सो, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो फिर से आप रिट्रेसल के लिए जा सकते हैं सेम साइट पे। देखिए, कंप्लेन फिलिंग कंप्लेन, यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। रिजॉइंड बाय कंप्लेन, एप्लीकेशन फिल्ड बाय कंप्लेन, सारी चीजें आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएंगी। डन। और ये आ गई आपकी दूसरी साइट। ठीक है, ये दोनों ही आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज पे ले जाती हैं। बहुत इधर उधर की साइट्स का यूज मत करिए बेटा, क्योंकि वो आपसे पैसे भी मांगती हैं। अगर आपसे यहाँ से फिल ना हो पाए, देन डायरेक्टली गो टू दी कोर्ट। कोर्ट में लॉयर विल हेल्प यू आउट, एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे भी पैसे दें, फिर लॉयर को भी पैसे दें, फिर कोर्ट में भी पैसे दें, तो जस्ट सेव योर मनी एंड सेव योर टाइम। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन मूव टू दी कोर्ट आल्सो। ओके, फाइनली आपको आपका आईडी नंबर चाहिए, दैट विल बी द स्टेप नंबर 1 बिफोर प्रोसेसिंग दी कंप्लेंट बॉक्स। क्लियर टू एवरीवन? बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आईडीज को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, नाउ वी विल मूव टू ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स किसे कहते हैं? ट्रेडमार्क्स जो डिस्टिंग्विश करते हैं मुझे और दूसरों, दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे कि कोई लोगो हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, तो पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज ट्रेडमार्क। क्यों हमें अपना ट्रेडमार्क रिकॉग्नाइज कराना चाहिए? सेम बेटा, हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, फिर मेरी यूनिकनेस ही क्या रह जाएगी? ज़ारा अपने एम्ब्रॉयडरी वाले बैग्स लाखों में बेचती है, बस उस पे ज़ारा ही तो लिखती है ना। और इंडिया में अगर आप पुराने घरों में आज भी चले जाइए तो आपको देखिए, आपको एम्ब्रॉयडरी बैग्स मिल जाएंगे। उनकी कीमत लाख लाख रुपए क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ज़ारा नहीं लिखा। आपने पेटेंट नहीं लिया था। अगर आप तब पेटेंट ले लेते तो आज आपके जो घरों में चीजें हैं, जो आपकी पुराना हैंडवर्क है, वो आज लाखों में। तो इंडिया में हम बहुत पीछे हैं ट्रेडमार्क्स में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। इनके अलग से सेमिनार और वेबिनार बेटा ज्वाइन करिए। कोशिश करिए कि जो आपको अच्छा लगता है उसका पेटेंट लीजिए, और पेटेंट लेने के बाद फिर उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्लियर? ठीक है, तो इंडिया खुद प्रमोट करती है पेटेंट के लिए। डन। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी वेल रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडमार्क्स हैं, क्या उन्हें हम लोग रेप्यूट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, 110% प्रमोट कर रहे हैं हम इसे कि सीखिए, आइए, अथॉरिटिफिकेशन लीजिए, फॉर्म फिल करिए, वेबिनार ज्वाइन करिए, सेमिनार ज्वाइन करिए, एनी हाउ आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और इंडिया में नंबर ऑफ पेटेंट्स का एप्लीकेशन डालिए, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ भी अगर हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को उसका बेनिफिट मिले। लोगों ने बेटा बहुत छोटी छोटी चीजों का पेटेंट ले रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पिलर आता है आलू छीलने वाला चाकू, उसका भी पेटेंट है। तो आपके पुराने जमाने में हंसिया यूज होती थी ना, आप उसका पेटेंट ले लीजिए, बस आपको क्लिक करना चाहिए। फिर वो जब भी बनेगी, जब भी बिकेगी, कोई अगर उसका नेम मिसयूज करेगा तो फिर आपको वहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है,
आपको कह रहा है कि रिन्यूअल कैसे करा सकते हैं और गुड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए ट्रेडमार्क्स मिलने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये क्योंकि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक्ट ये कहता है कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल लगते हैं किसी मार्क को प्रमोट होने के। अब ऐसा नहीं है बेटा, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है, अब ये प्रॉब्लम्स हम इस कदर फेस नहीं करते, है ना। अब ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हमको नहीं आती हैं, क्योंकि अब हम लोग डिजिटली चीजों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और डिजिटली ही चीजों को अच्छे से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, रिन्यूअल लेना पड़ता है, रिन्यूअल लेना पड़ता है, हर 10 साल बाद आपको रिन्यूअल लेना, रिन्यूअल की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, देयर इज सम कॉस्ट, ठीक है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए 30 लाख है तो 30,000 रुपए, 1% भी या 2% समथिंग कुछ ऐसा होता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है, वो आपको पे करना, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स, अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस चाहिए, कुछ लाइसेंस में चेंजेस चाहिए, कोई नया जॉब प्रोफाइल है, तो उसको आप क्या कहते हैं बेटा, रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फॉर द रेटिफिकेशन कैन आल्सो बी फिल्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द एंट्री मेड इन द रजिस्टर विदाउट द सफिशिएंट कॉज or the wrongly remaining on the registers for the correction or the error or the defect in the entry of the registers, ठीक है। तो कुछ भी आपको लग रहा है, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम आपकी सुविधा के लिए हैं, हम आपको ये मौका दे रहे हैं कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए ये इसलिए अच्छी है क्योंकि ये हमको इतनी इंपॉर्टेंस देती है कि हम कैसे कैसे काम करें। अब अलग से इसका एक एक्ट 1999 जो हमको ये कहता है कि इवन मेरी गुडविल भी मेरा ट्रेडमार्क। देखिए गुडविल वेरी करती है बेटा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे? जैसे कि मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया था, टाटा क्या कैरी करता है? टाटा गुडविल कैरी करता है, बहुत ह्यूज अमाउंट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी है, अच्छे लोग हैं, हमको ये समझ में आता है ना। लेकिन वही किंगफिशर की जब हम बात करते हैं तो वो गुडविल कैरी नहीं करते हैं बेटा। तो ये भी बिकाऊ चीज है, ये भी इसकी कीमत है। गुडविल कैरी करिए, इमेज बिल्डिंग पे काम करिए, प्रोडक्ट ही सब कुछ है। प्रोडक्ट इज अ की टू सक्सेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सो प्रोडक्ट इज अ की टू सक्सेस। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बस प्रोडक्ट पे ध्यान रखिए, मल्टीपल चीजों में मत जाइए, कस्टमर को वही प्रोडक्ट बेचिए, बेचते रहिए। विजॉन शेविंग क्रीम आती है, सालों से आ रही है, आपके ग्रैंडफादर यूज करते हो, और वो एग्जाम्पल है प्रोडक्ट का, बहुत सटीक एग्जाम्पल है। डिससेटिस्फाइड लोग नहीं है उससे जो उसे यूज करते। अभी इतनी शेविंग क्रीम्स आ गई है, क्यों वही चल रही है, सदियों से चल रही है। अच्छा, कोई मार्केटिंग नहीं है विजॉन शेविंग क्रीम की खास, कोई सेलिब्रिटी नहीं है उसके साथ एसोसिएट, चल रही है, कंपनी प्रॉफिट में है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाइए बेटा जो कस्टमर लाइफ लॉन्ग यूज करे और उसको कोई कंप्लेन ना। कुछ चीजें हमारी हैबिट होती है, तो उन अगर प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए और इजी है। जैसे आपकी मम्मी अगर कोलगेट यूज करती है तो आप कोलगेट यूज करेंगे, आपकी मम्मी पेप्सोडेंट यूज करती है तो आप पेप्सोडेंट यूज करेंगे। किसी घर में दंत कांति आता है, दंत कांति आता रहेगा। सेम विद द शैम्पू एंड सेम विद द ऑयल। FMCG गुड्स वी हार्डली चेंज। जो मेरी मदर यूज करती है वही मैं कर रही हूँ, वही मेरे चिल्ड्रंस भी कर, इट हार्डली गेट चेंज्ड। सो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमारी गुडविल बोल रही है भाई कि 3 पुश्ते उसे यूज कर रही है। सो इन दीज केसेस हम इसको पेटेंट लें, राइट्स लें और क्यों ना अपनी गुडविल का यूज करें। सो आई थॉट दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट that is serving for you all, that is serving for the benefit of the society, that is serving for the benefit of the consumer. What you have discussed? You have discussed all 3 forums, you have discussed different rates,
You have discussed other laws also related to Consumer Protection Act. So as I have always said, in the case of any doubt, I always write my email ID. You can contact me. My number is, again I am writing here, that is 972-008-334. This is my WhatsApp number also. You can ask me the personal questions also. आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, so you just click or you just take the screenshot. Surely I am going to send the additional notes. Thank you so much, my dear students. Thank you for